Welcome students in my biology classes. In previous video we described about the microbes is used as a household product, as well as we also discussed in second part, that is the microbes used as in industries. In this video, we describe the microbes in human welfare. There is another topic, that is the microbes in sewage treatment. Okay, why should it is necessary for this topic? Because you know about them. The waste material that is released from the houses, hospitals, or sewage, which are directly flow into the river, which causes the water pollutions, and this is the very harmful for the aquatic habitat organisms. So before transfer the water into the river, first we treatment, means we become the less polluted of water, then enter into the rivers. Okay, so let us start the topic microbes in ह्यूमन वेलफेयर का नेक्स्ट जो पार्ट है सीवेज ट्रीटमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द सीवेज? सीवेज रिफर टू द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स. सिटी एंड टाउन से जो एवरी डे जो म्यूनिसिपल waste material, means that is the waste water that is released from houses, hospital, college, etc. This is known as the sewage. Human excreta is the major component of it. और सीवेज में सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट होता है वो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है. ओके, it contains large amount of organic matter and microbes, out of which many are pathogenic. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होता है, एज वेल एज द माइक्रोब्स भी, दैट इज लार्जर अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सीवेज, विच कॉज द मेनी टाइप ऑफ डिजीज. So it cannot be discharged into the natural water bodies like river, stream, etc. directly. ठीक है, तो इस जो सीवेज है इसलिए इसको डायरेक्टली रिवर, स्ट्रीम, लेक में नहीं डालना चाहिए. बिफोर दे डिस्चार्ज देम वी ट्रीटेड देम. बिफोर डिस्पोजल सीवेज हैज़ टू बी द treated in sewage treatment plant. Okay, in order to make it less polluting, उस वाटर को, सीवेज वाटर को, which contain the large amount of the pathogen organic matter, means polluted water है, उसको less polluted बना करके उसको डिस्चार्ज करना चाहिए रिवर में, स्ट्रीम में और लेक में. That is clear? For the sewage treatment there are two process that is used for the treatment of sewage. First one is the primary treatments. Primary treatment of sewage. So what are doing inside the primary treatment? Inside the primary treatments, they are normally that is use the physical treatment. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फिजिकल ट्रीटमेंट. ओके, जिसमें हम
फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसमें एक मेन है जिसको हम फिल्टर करते हैं. व्हाट इज डूइंग इनसाइड द प्राइमरी ट्रीटमेंट्स? लिसन. फर्स्ट, it involves the physical removal of the particles through the filtration and the sedimentation. ओके, तो इसके थ्रू जो फिजिकल रिमूव करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, एंड सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस है कि वाटर को बड़े बड़े टैंकों में कुछ समय तक उसमें स्टोरेज रहने देते हैं, जिसके कारण जो उसमें बिगर पार्टिकल्स होंगे दैट इज सेटल डाउन. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, सेडिमेंटेशन एंड filtration. Okay, it involves the physical removal of the small and large floating and suspended solid from sewage through the filtration and sedimentation. जो larger particles है उसको फिल्टर करके, अदरवाइज सेडिमेंटेशन के थ्रू उसको हम अलग कर लेते हैं. दैट इज क्लियर. सेकेंड वन, initially floating debris is removed by the sequential filtration. जो फ्लोटिंग सबस्टांसेस है, वेस्ट मटेरियल है, स्मॉल पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल्स, उसको हम सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग करते हैं. मतलब लार्जर पार्टिकल्स के लिए थ्रू द हैंड्स के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक. स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए विच आर प्रेजेंट ऑन द वाटर सरफेस विच आर फ्लोटिंग, थ्रू द फिल्ट्रेशन filter them. Okay. Third one, the great pebbles are removed by the sedimentation. Great means soil and small pebbles. Soil particle जो small particles हो या pebbles के small particles हो which are present in the water, उसको हम settling के थ्रू उसको रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, मतलब वाटर को एक बड़े लार्जर टैंक में स्टोर रख देते हैं कुछ समय के लिए. उसमें जो बिगर पार्टिकल्स होंगे जैसे पेबल्स हों या सैंड पार्टिकल्स होते हैं बिगर साइज के, दे सेटल डाउन. दैट इज क्लियर. ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर द इफ्लुएंट्स. ठीक है, जितने भी सॉलिड मटेरियल्स है, सेटलिंग टैंक जो सेटल जिसमें होते हैं, मतलब जहाँ पर वाटर को स्टोर करके रखते हैं, सभी जो हैवी मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल होता है, दैट इज सेटल डाउन. वहाँ पर सेटल डाउन होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्लज. और ये जो वेस्ट मटेरियल जो सेटल डाउन के थ्रू फॉर्म हुए हैं उसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं. एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द इफ्लुएंट. और उस जो वाटर उसमें से बचा हुआ है, मतलब सेटलिंग डाउन होने के बाद जो वाटर प्रेजेंट है या वाटर जो बचा हुआ है उसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं. ओके, द सुपरनेटेंट्स फॉर्म द इफ्लुएंट्स एंड द इफ्लुएंट्स आर टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. और ये जो इफ्लुएंट बचा हुआ है, मतलब वाटर सेटलिंग के बाद जो वाटर बचा हुआ है वो इफ्लुएंट होता है, और इसी इफ्लुएंट्स को दैट इज यूज फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है. दैट इज क्लियर. तो व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व देम, क्लियर हो गए. ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्लियर हो गया. देखिए एक ये दिया हुआ है टैंक, दैट इज हियर इज द फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट एज वेल एज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. यह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यू सी हियर. ठीक है, ए टैंक है, सेटलिंग टैंक, सेडिमेंटेशन. ए टैंक है जहाँ पर बड़े बड़े टैंक होते हैं जहाँ पर वाटर को कुछ समय के लिए पहले स्टोर करते हैं. ठीक है, इसके थ्रू ये पंप है, इसके थ्रू वाटर यहाँ इंटर कर रहा है. ठीक,
ये टैंक बनाए गए हैं जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है कुछ समय के लिए। फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, पहले फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है, देन सेटलिंग टैंक में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पर पेबल्स और बिगर सैंड पार्टिकल्स होते हैं, देयर आर शटल डाउन। ठीक, उसके बाद जो वाटर बचता है उसको हम इफ्लुएंट कहते हैं। अब इस वाटर को हम यूज करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का है। ओके, तो व्हाट इज डूइंग इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट दैट इज आल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वाई दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? बिकॉज देयर इज यूज द माइक्रोब्स। इसमें माइक्रोब्स का यूज किया जाता है वाटर को ट्रीट करने के लिए, प्योर करने के लिए। ओके, द इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी treatment is passed into the large aeration tank where it is the constantly mechanically agitated air is pumped into it। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो इफ्लुएंट मिला था, जो वाटर मिला था, उसमें हम मैकेनिकली एयर उसमें मिक्स करते हैं थ्रू द पंप। इस प्रोसेस इसको कहते हैं एरिएशन। ठीक है, मिक्स ऑफ एयर इनटू द इफ्लुएंट, द प्रोसेस इज नोन एज एरिएशन। क्लियर? और एरिएशन जब एयर उसमें मिक्स करते हैं, देन माइक्रोब्स जो हैं, बैक्टीरिया एज वेल एज द फंगस, वह फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स दैट इज कम आउट ऑन द सरफेस। अ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स के रूप में ऊपर चले जाते हैं सरफेस पर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स। दिस एयर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक्स। ठीक है, फ्लॉक्स क्या होता है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, बैक्टीरिया और फंगस का एक ग्रुप होता है। एयर जैसे वाटर मिक्स करते हैं उसमें जो माइक्रोब्स है सब कहाँ चले आए? ऊपर आ गए। दैट इज क्लियर? दिस माइक्रोब्स कंज्यूम major part of the organic matter, converting it into microbial biomass and releasing lot of minerals। जो ये microbes present है, they consume the major part of organic matter। organic matter को maximum consume कर लेते हैं और degrade कर देते हैं। converting it into the microbial biomass, उसको convert कर देते हैं, and releasing lot of minerals, और उसमें जो mineral present होता है उसको release कर देते हैं। That is clear? So this significantly reduce the biochemical oxygen demand, जिसके कारण जो वाटर में, क्योंकि उसमें जो माइक्रोब्स है जब डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल को तो ऑक्सीजन उसमें कंज्यूम हो जाएगी। ऑक्सीजन कंज्यूम होने का मतलब वाटर में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। So this is there is one term is given is biochemical oxygen demand for survival organism that is required a minimum oxygen। ठीक है, जितने वाटर रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। जो सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को आवश्यक होता है, DO मीन्स डिजोल्व ऑक्सीजन, BOD मीन्स बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो ऑक्सीजन डिमांड है वहाँ पर बढ़ जाती है बिकॉज जो माइक्रोब्स होते हैं दे आर डिकम्पोज द वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो ऑक्सीजन उसमें कंज्यूम हो जाती है और ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो जाती है। दैट इज क्लियर? When the BOD of effluent is reduced significantly is then passed into the settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment। ठीक है, जब BOD इफ्लुएंट रिड्यूस हो जाता है तब उसको हम उस वाटर को कहाँ डालते हैं? सेटलिंग टैंक में फिर दोबारा डालते हैं। एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेटलिंग टैंक था सेडिमेंटेशन के लिए, यहाँ पर सेटलिंग टैंक फिर एरिएशन करने के बाद यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया फंगल जो प्रेजेंट थे फ्लॉक्स में वह
सेडिमेंट के साथ प्रेजेंट हो जाता है, मतलब वेस्ट मटेरियल, उसको डिकम्पोज करने में वो यूज कंज्यूम हो रहे थे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के थ्रू जो स्लज बन रहा है वो एक्टिवेटेड स्लज है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू बन रहा था वो स्लज उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्लियर? A small part of activated sludge is then pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum। ठीक है, जो स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज है दे अगेन देन पंप बैक इनटू द एरिएशन टैंक, उसको एरिएशन टैंक में फिर डालते हैं। क्यों डालते हैं? जो माइक्रोब्स होता है दे अगेन कम आउट ऑफ द सरफेस। ठीक, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के शुरुआत में क्या करते हैं, उसको बायोमॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करते हैं, मिनरल को रिलीज करते हैं, जिसके कारण बीओडी रिड्यूस हो जाती है। दैट इज क्लियर? व्हाट इज द प्रोसेस? कैसे ये प्रोसेस किया जाता है? यू सी थ्रू द चार्ट, आप चार्ट के थ्रू इजिली समझ सकते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। जस्ट लाइक यू सी हियर, ए प्राइमरी फिजिकल ट्रीटमेंट सीवेज है, ठीक है, डायरेक्टली वो इंटर कर रहा है, कम्यूट किया जाता है, ग्रेटिंग मतलब फिजिकल जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है यहाँ पर सब होता है फिजिकल फिल्ट्रेशन के थ्रू, एज वेल एज थ्रू द सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशंस रिमूव किया जाता है वेस्ट मटेरियल को, ग्रेड के थ्रू सेडिमेंटेशन प्रोसेस कराया जाता है, जिसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज यूज फॉर द कंपोस्ट लैंड फिलिंग, उसका लैंड फिलिंग में भी प्रयोग करते हैं। ठीक, गड्ढे वड्ढे भरने के लिए यूज़ करते हैं। और जो सेटलिंग टैंक या सेडिमेंटेशन के लिए हम उसको पॉन्ड में रोकते हैं, ये बड़े से टैंक में स्टोर करते हैं वाटर को, वहाँ पर प्राइमरी सेटलिंग होती है। दैट इज क्लियर? प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स यहाँ पर है, जिसमें दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्लज, स्लज का फॉर्मेशन होता है जो नीचे बैठ जाता है जस्ट लाइक हियर। ठीक है, यदि वाटर तो ये नीचे वाला पार्ट आपका स्लज का फॉर्मेशन होता है, जिसमें डस्ट पार्टिकल एज वेल एज द पेबल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो गए। जो वाटर होता है वो इंटर करता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जस्ट लाइक हियर यू सी। ठीक है, और ये आपका स्लज हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू जो फॉर्मेशन हुआ स्लज। ओके, एरिएशन टैंक में जब इसको इंटर कराते हैं तो यहाँ पर हम एयर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, पंप के थ्रू इसमें एयर मिक्स करते हैं, जिसके थ्रू फ्लॉक का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ओके, और अल्टरनेट पॉट ट्रिकलिंग फिल्टर, मतलब यदि कुछ और प्रोसेस के थ्रू उसको फिल्टर किया जाए, ट्रिकलिंग फिल्टर दिया हुआ है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल दैट इज आल्सो रिमूव फ्रॉम देन उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। ठीक, एरिएशन के बाद वाटर को हम कहाँ रख देते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। अब यहाँ पर जो सेटल डाउन होता है फ्लॉक, जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं मिनरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, मिनरल को रिमूव करते हैं। ठीक है, जिसके कारण स्लज का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। दोनों स्लज यहाँ पर आ गया। ठीक, दिस स्लज आर यूज फॉर द बायोगैस, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, एज वेल एज दैट इज यूज फॉर द मैन्यूर, खाद के रूप में, कंपोस्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। लैंड फिलिंग, गड्ढे को पाटने के लिए यूज़ करते हैं, वेस्ट मटेरियल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब वाटर जो यहाँ पर आपका सेकेंडरी सेटलिंग के थ्रू फिल्टर हो गया, मतलब रिमूव हो गया कुछ वेस्ट मटेरियल यहाँ पर, देन दिस वाटर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द रिवर और लेक। सो व्हाट इज द प्रोसेस, दैट इज क्लियर थ्रू द चार्ट? ओके,
व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्लज, और ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी स्लज में क्या डिफरेंट है? द प्राइमरी स्लज, इट इज प्राइमरी स्लज फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के समय प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन होता है, वाइल activated sludge formed during the secondary sewage treatment. That is clear. Second, primary sludge not possess flocks of decomposers microbes. इसमें फ्लॉक का फॉर्मेशन नहीं होता, डिकम्पोजर्स प्रोसेस नहीं होता। एक्टिवेटेड स्लज में दैट इज पोसेस द फ्लॉक्स ऑफ डिकम्पोजर माइक्रोब्स। दैट इज क्लियर। थर्ड प्रोसेस है, इट डज नॉट रिक्वायर एरिएशन। प्राइमरी स्लज में एरिएशन की रिक्वायर्ड नहीं है, एयर उसमें इंटर कराने की जरूरत नहीं होती। बट इन केस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज रिक्वायर एरिएशन। फॉर्मेशन के लिए एयर की रिक्वायर्ड होती है। दैट इज क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट, फॉर प्राइमरी स्लज लिटिल डिकम्पोजिशन हैज अकर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज के समय बहुत कम या वेरी लेस अमाउंट में डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। बट इन केस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज अ लॉट ऑफ द decompositions has occurred during the formation of activated sludge. That is clear. What is different between primary sludge and activated sludge? In case of secondary treatment, there is the anaerobic treatment होता है यहाँ पर, because that is in the absence of ऑक्सीजन होता है। द रिमेनिंग प्लस इज फॉर्म इनटू द एरोबिक प्लस डाइजेस्टर वेयर देयर और अनदर बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगी इन द स्लज। जो लोअर पार्ट में वहाँ पर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं है, स्लज में जो एक्टिवेटेड स्लज है वहाँ पर दे डिकम्पोज ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द दैट डिकम्पोज देम। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायोगैस मिक्सचर ऑफ मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये डिकम्पोज करते हैं तो एनारोबिक कंडीशन में दैट इज रिलीज द बायोगैस। बायोगैस क्या है, कौन कौन से गैस प्रेजेंट होते हैं? मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज होते हैं। दिस गैसेस फॉर्म बायोगैस दैट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज इनफ्लेमेबल। एक गैस जो रिलीज हो रही है इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बायोगैस यूज़ किया जाता था पहले, वेस्ट मटेरियल से जो गैस रिलीज होती थी उसको यूज़ करते थे इन किचन हाउसेज, ठीक है, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल गैस होती है। एंड लास्ट वन, द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज इज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम। सेकेंडरी इफ्लुएंट का सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद उसको हम डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। Okay, that is clear. You like, share and subscribe my channels. If any queries, you write in comment box. Thank you for watching the videos.